So I welcome every one of you for today's our third session of Ramayana Value Education Life Lessons from Ramayana Value Education series. So today, today we are going to learn so many wonderful lessons, and today's session will be very amazing. So it will be very useful in our personal life, day-to-day life. So we'll continue our session. So I'll start with the prayer and blessings. We'll start with the prayer and blessing. So see. So this is dedicated to A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is founder Acharya of ISKCON. So based on his teachings and knowledge given by him, this PPT is made and these notes are been made. So lesson plan you know. So I'll start with prayer. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya. So, from this, what is the meaning of that prayer? I offer my respectful obeisances unto millions and millions of obeisances unto my spiritual master, who destroyed the ignorance, darkness of ignorance from my heart, and enlightened me with torchlight of knowledge. So I am very grateful to him with with the blessings and order of my all superior spiritual teachers. I beg for their mercy so that I can speak something valuable, tangible, which will be useful in my own life, and it should help all of you. And we'll start this today's session. So today's session name is Living True Relationships. So that can be studied and that can be understood from the dealings of Lakshman and Bharat with Lord Ram. लॉर्ड रामचंद्र जी के साथ में जो लक्ष्मण और भरत जी के डीलिंग्स थे, उससे हमें सीख सकते हैं बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन. इवन डेमी गॉड्स एंड सेजेस appear from heavens and many other places just to hear the conversation between Bharat and Lord Ramachandra. So we'll study this wonderful conversation in today's session, and we'll learn many valuable lessons which will be useful throughout our life. So please be attentive till last moment you attend this session, so that all conclusions will be, most of the conclusion will be at the end. So initially we'll see some past times and lessons also along with that. Okay, so see, we'll start with then to first scenario is, in last session we have seen that Lord Ramchandra was banished to forest for 14 years, and he was proceeding to forest along with मदर सीता एंड लक्ष्मण. तो लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ में फॉरेस्ट में भी जाने के लिए निकलते हैं. रात में लोग जब सो जाते हैं सब, तो हमने देखा था कि जब आराम होता है तो राम जी नहीं होते है ना. तो देन ही वाज गोइंग इन द फॉरेस्ट दैट टाइम. तो वैसे हमने देखा कि उस टाइम पे जब लक्ष्मण, बट उससे पहले क्या हुआ था वो पिछले सेशन में डिटेल में नहीं था, अभी इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. जैसे ही पता चलता है लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी को कि उनको पता चलता है कि राम जी को वनवास भेजा जा रहा है 14 इयर्स के लिए, और भरत महाराज को राजा बनाया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राम जी को बोलते हैं आई एम विथ यू, आई एम रेडी टू फेस होल वर्ल्ड. अगर पूरी दुनिया की भी आर्मी आई तो मैं फेस कर सकता हूँ उनको, बट आप ही डिजर्व करते राजा बनना, and you have all that qualification. All people also want same thing, all minister also want same thing. So my dear brother, why you are not opposing to और फादर्स ऑर्डर, वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? आप क्या कीजिए, अपोज कीजिए और आप क्या करें, आप ही राजा बनिए. बाकी सारी अगर दुनिया भी आपके अपोज में हो जाएगी तो मैं उनका सामना करने के लिए आपकी कृपा से समर्थ हूँ, तो मैं उनके साथ फाइट करूंगा.
तो आप क्या कीजिए, आप ही राजा बनिए, जंगल जाना जो है उसको कैंसिल कर दीजिए, आप इस ऑर्डर को फॉलो मत कीजिए। अगर हमारे सुपेरियर अगर हमें गलत आज्ञा देते, हमारे फादर या टीचर्स या गुरु जो है, अगर वो अधार्मिक हमें आज्ञा देते, अगर कोई बोलते तुम शराब पी लो, ऐसा है ना, तो नहीं पीना चाहिए, कि भले ही फादर की आज्ञा है बट नहीं पालन करना चाहिए अगर वो गलत है तो वैसे ही राम जी को बोलते अगर हमारे सुपेरियर्स अगर वो गलत काम करते तो वी शुड नॉट सपोर्ट देम इन दैट, rather we should oppose them. So Dashrath Maharaj is doing this injustice to you, so I will not support him and I will stand अगेंस्ट हिम। तो वो ऐसा लक्ष्मण जी ने उनको बोला, राम जी को बोला। तो उस टाइम पे देखते हम लोग, फिर राम जी तो लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। कौशल्या माता भी बोले ऐसे कैसे बोले, ठीक है तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी, मैं एज अ माता मैं भी क्या करती हूँ, तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जंगल में मत जाओ, यू बिकम किंग एंड रूल एंड जो प्रजा है उन सबका क्या करिए, उसको सुखी, उनको सुखी बनाओ और सबको इक्वली विदाउट एनी फेवरेटिज्म यू रूल द किंगडम एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन टू रूल द अर्थ। तो ऐसे माता कौशल्या भी बोलती है, बोले जैसे तुम्हारे पिताजी का हक है, तो वो नहीं बोलती कि मैं रानी हूँ, बोलती मैं तुम्हारी माता हूँ। तो बोले जैसे तुम पिताजी की आज्ञा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो माता की आज्ञा, माता का तो ज्यादा अधिकार बनता है पिता से भी, क्योंकि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में पाल के तुम्हें जन्म दिया है, बोले तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर राम जी बहुत काम कूल रहते, इतना टेंस सिचुएशन है, लक्ष्मण जी इतने गुस्सा होते, माता कौशल्या रो रही होती, वो इतनी दुखी होती, लक्ष्मण जी भी दुखी होते, बहुत सारी अयोध्या की प्रजा दुखी होती है, सब लोग रोने लग जाते हैं इस डिसीजन से, सब जगह पे दुख का माहौल फैल जाता है, सब लोग पीपल एवरीबॉडी इज क्राइंग टीयर्स एंड दे आर नॉट ईटिंग, पूरा एकदम हम देखते सब जगह पे दुख ही दुख फैल गया, सब लोग दुखी थे, कोई नहीं चाहता था राम जी जाए। बट राम जी वॉज वेरी कूल एंड पीसफुल, ही वॉज ऑल्सो डिस्ट्रेस, नॉट बिकॉज दैट ही हैज टू गो टू फॉरेस्ट, बट वो क्यों दुखी थे, क्योंकि उनकी वजह से सारी वो ना जाए उसके लिए सारी प्रजा दुखी थी, उनकी माता दुखी थी लक्ष्मण जी, इसलिए उनको उस बात का दुख था, बट उन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। तो राम जी ऐसे थे, एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कोई चीज तो वो उसको पूरा ही करते थे, 101%, उसको कभी निग्लेक्ट नहीं करते, उसको वापस अपने वर्ड से कभी मुकरते नहीं थे। तो उन्होंने कई कई माता के सामने प्रॉमिस किया था कि आई विल गो टू फॉरेस्ट फॉर 14 years एंड आई विल नॉट बिकम किंग फॉर 14 years। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो वो अपनी प्रॉमिस तो कभी नहीं तोड़ने वाले थे। तो लक्ष्मण जी को भी ये पता था, फिर भी वो ट्राई कर रहे थे, पूरी तरीके से माता कौशल्या को भी पता था, बट फिर भी वो ट्राई कर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे राम जी वनवास में जाए भटके एक सन्यासी की तरह, और पूरा इतने किंग जो है उनको इतने ऑपुलेंस से अवेलेबल, वो सब छोड़ के इतने ऑस्टेरिटी, इतनी तपस्या का पालन करे। तो उस टाइम पे अगर देखे राम जी की जगह कोई और होता, तो अगर कोई और पर्सन होता तो वो क्या बोलता कि मेरे फादर तो गलत है, वो तो कई कई एक स्त्री की बातों में आ गई और उनकी बातों से मुझे जंगल भेजने के लिए बोल रहे 14 साल तक, तो वो क्या है अपनी पत्नी से अटैच है, वो पागल हो गए बोलेंगे, बूढ़े बुढ़ा सटिया गया ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसलिए बट राम जी ने वैसा नहीं किया, और उनके साथ में सोचिए सारी सारी प्रजा थी, सब उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, सारे फैमिली मेंबर्स थे कई कई को छोड़ के, लक्ष्मण जी का सपोर्ट था। तो अगर वो चाहते तो दशरथ महाराज की आज्ञा का कभी पालन भी नहीं करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, और लोग भी उनको ब्लेम नहीं करते थे, बिकॉज ही वॉज डूइंग राइट थिंग। बट उन्होंने अपने पिताजी का वचन के सम्मान रखने के लिए, खुद के लिए कितनी भी तपस्या स्वीकारने के लिए वो तैयार हो गए, और उन्होंने वचन जो दिया था कई कई माता को कि अगर आप खुशी, आप अगर बोलते मुझे तो मैं खुशी खुशी, आप भी बोलते, वचन तो छोड़िए, आप अगर सिर्फ बोलते तुम चले जाओ तो भी मैं जाता खुशी खुशी आपकी खुशी के लिए। तो वो उन्होंने सच में पालन करके दिखाया। तो देखिए बहुत सारे लोग चाहते थे कि राम जी क्या बने, राजा बने, और बट फिर भी राम जी जो थे उन्होंने अपने फादर के सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं वनवास जाऊंगा, फादर के सामने और कई कई माता के सामने, तो क्या उन्होंने उसका पालन करना ही डिसाइड किया, उसमें से वो थोड़े भी उसमें से डाइवर्ट नहीं हो गए, डेविएट नहीं हुए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राम जी के पास हम देखते जो सिचुएशन था उसको बदलने की पावर थी, वो तो सुप्रीम लॉर्ड है, सब लोग पीपल का सपोर्ट, एवरीथिंग वाज देयर, बट स्टिल ही फॉलोड हिज वाव। ठीक है, तो it is just like a wow, he followed his wow, that is just like wow। so we can see that, तो he followed his wow completely। एंड देन लक्ष्मण जी जो थे
वो तो लक्ष्मण जी राम जी के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी जाने के लिए तैयार थे, बिकॉज ही हैज सो डीप लव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड रामचंद्र। तो ये हम इससे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गुहा जो है भगवान के जो फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनको रॉयल फूड दिया, जो राजसी भोजन होता है वो दिया उनको, रामचंद्र जी को। बट उन्होंने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि अभी मैं राजा नहीं हूँ, अभी मैं वन में, तो उधर तो कोई देखने वाला भी नहीं था, और उनको ये प्रॉमिस नहीं दिया था कि राजसी जो अन्न है वो नहीं खाना चाहिए। बट उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वो अपने जो घोड़े थे उनको खिलाया, और उन्होंने नॉर्मल जो कंदमूल फल वगैरह उसको ही ग्रहण किया। तो देखिए कितने लॉयल थे, क्या इंटीग्रिटी थी उनकी। तो इससे हम समझ सकते हैं, ठीक है, लॉर्ड रामचंद्र इंटीग्रिटी। तो वो चाहते, वो अगर चाहते तो वो खुद राजा, कभी भी एक सेकंड में राजा बन सकते थे उस टाइम पे, और सब लोगों का, प्रजा का, सबका उनको सपोर्ट भी मिलता था। बट अगर हमने देखा कि उधर उनको सपोर्ट मिलता था, बट उन्होंने क्या किया, वैसा किया नहीं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का ही डिसीजन लिया। तो देखिए आगे क्या होता है, माता सीता की इंटीग्रिटी। तो माता सीता जब कोई स्त्री की शादी होती है तो वो वचन देते कि हर सुख दुख में मैं क्या करूंगी, आपके साथ में रहूंगी। और पिता जो पति रहते हैं वो भी वचन देते हैं कि क्या करूंगे, मैं आपकी रक्षा करूंगा करके। तो माता सीता ने उनको जो शादी के समय उन्होंने वाव लिया था उसका याद दिलाया कि आप अभी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बट आपने बोला था हर सुख दुख में साथ साथ देंगे, और मैंने भी प्रण लिया था कि हर सुख दुख में मैं आपकी साथ दूंगी। तो माता सीता वो एक, हम देखते हैं शी वॉज प्रिंसेस, राजकुमारी थी, और अभी रानी थी, वो रानी होने वाली थी माता सीता। तो उनको कभी ऐसे ऑस्टेरियर लाइफ, तपस्या का जीवन जो कभी उनको उनको उसका अनुभव नहीं था। बट इतने राजसिक सुख, सब कुछ सुख समृद्धि, सब सारी चीजें छोड़ के वो राम जी के साथ जाने को तैयार हो गए, सारे लोगों को सब चीजें छोड़ के। नहीं तो वो अगर उसमें राजमहल में रहती थी उनको सारी फैसिलिटीज मिलती थी, और वो कोई बोलती थी कि मुझे दुख तो हो रहा है, मेरा पति जा रहा है, बट मैं कैसे रह सकती हूँ जंगल में, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ इतना दुख भुगतने का, इतनी तपस्या मैं कभी कर नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी कभी एक्सपीरियंस। और राम जी उनको लेके भी नहीं जाना चाहते थे, राम जी उनको लेके नहीं जाना चाहते थे ना। और उनको किसी ने वनवास में जाने के लिए, उनको तो बोला गया नहीं था, सिर्फ राम जी को वनवास जाने के लिए बोला गया था, माता सीता को नहीं बोला था, ठीक है ना। तो इससे हमें देखते हैं कि जो माता सीता की जो पतिव्रता का धर्म जो है, चास्टिटी जो है, पतिव्रत धर्म है, वो अपने पति की तरफ उनका कितना अच्छे से, उनका जो भक्ति था, जो पति के प्रति उनकी श्रद्धा थी, सेवा भाव था, वो कितना था, इससे हम इससे समझ सकते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि एक पत्नी जो होती है, उन्होंने अपने पति का साथ सुख हो या दुख हो उसमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल अगर थोड़ा भी पति गलत हो गया तो दूसरा शादी कर लेते लोग, डिवोर्स देते थे उसको और दूसरा शादी कर लेते। बट माता सीता जो आजकल, अभी वो बात भी अलग है कि हस्बैंड वैसे नहीं रहते, तो हस्बैंड भी आजकल राम जी की तरह नहीं, राम जी की तरह अगर हस्बैंड हो गए तो कोई भी वाइफ करेगी, वो भी बात अलग है। तो ना ही वाइफ माता सीता की तरह है, ना ही हस्बैंड राम जी की तरह है। इसलिए दोनों के लिए जरूरी है रामायण सुनना, और उससे राम जी की क्वालिटीज, उनके जैसा तो हम कभी बन भी नहीं सकते, पॉसिबली हो तो भगवान है, बट उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं, जो उन्होंने अपने आचरण से लेसन सिखाए उसमें से कुछ इम्बाइब कर सकते हैं हम लोग। और माता सीता जैसा भी कोई नहीं बन सकता, बट माता सीता के पद चिन्हों पे चल के हमने कुछ चीजें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, यह हम इससे सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, तो माता सीता ने सारे डिस्कम्फर्ट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो माता सीता हमने देखा कि वो रानी राजकुमारी थी, ठीक है ना, इतना और जो तपस्या वाली लाइफ, जंगल में देखिए उनको सिंपल, बहुत सिंपल से कपड़े में रहना पड़ेगा, उधर हट झोपड़ी में रहना पड़ेगा, कभी खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और उधर फल कंदमूल वगैरह खा के रहना पड़ेगा, जानवर, जंगली जानवर रहेंगे, कांटे चुभेंगे पैर में, कितनी सारे प्रॉब्लम्स थे, धूप रहेगी, बारिश रहेगी, ये इतना सारा प्रॉब्लम सहने के लिए माता सीता तैयार हो गई और उन्होंने त्याग कर दिया। उसके बाद देखिए कि माता सीता के बारे में, त्याग के बारे में बहुत कुछ चीजें बोली जा सकती है, बट अभी हमारे पास समय कम है इसलिए हम फास्ट करेंगे थोड़ा। तो उसके बाद लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी देखिए, तो लक्ष्मण जी को राम जी को जाने ही नहीं देना चाहते थे फॉरेस्ट में ही। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि राम जी बोले कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं फॉरेस्ट में जाना ही है मुझे, मैं पिताजी को जो वचन दिया है उसको कभी तोड़ूंगा नहीं। ही नेवर वांटेड टू डिसोबे हिज फादर्स वाव, ठीक है, वो कभी डिसोबे नहीं करना चाहते थे अपने फादर को जो दिया हुआ था
वचन वो कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। तो लक्ष्मण जी ने बहुत उनको कन्विंस करने का कोशिश किया, बट उन्होंने नहीं माना। बट जब राम जी जाने के लिए तैयार हो गए तो लक्ष्मण जी भी बोले मैं भी क्या करूंगा, आपके साथ में वन में जाऊंगा, ठीक है, मैं भी आपके साथ में वन में चलूंगा बोले। और लक्ष्मण जी बोले कि जहां पे राम जी रहेंगे वहीं पे मैं रहूंगा, मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता। बोले अगर पूरा दुनिया का भी राजा मुझे बना दिया जाएगा तो भी मैं उसको ठुकरा के राम जी के साथ में ही रहूंगा, मुझे राम जी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, राम जी के सिवा मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, मेरी दुनिया ही राम जी है, ऐसा वो बोलते थे। तो राम जी के प्रति अप्रतिम श्रद्धा, और हम देखते बहुत ज्यादा उनको प्रेम था राम जी के प्रति, बहुत ज्यादा प्यार था उनके प्रति, बहुत ज्यादा भक्ति उनके प्रति था लक्ष्मण जी को। ही हैज अनअलॉयड अनइंटरप्टेड लव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड रामचंद्र। तो उसके बाद देखते कि जब उनको जाने की तैयारी होने लगी राम जी की, तो लक्ष्मण जी गए उनके पास, बोले, उन्होंने चरण पकड़े कि कुछ भी हो जाए भैया मुझे आपके साथ ही जाना है, आप मैं आपको छोड़ के रह ही नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो राम जी देखिए लक्ष्मण जी का कितना त्याग है। तो लक्ष्मण जी कि क्या करना चाहते थे, राम जी के साथ में ही जाना चाहते थे किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। तो देखिए क्या हुआ था, इसका छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप है। जस्ट अ मिनट, आई विल इंक्रीज वॉइस of my laptop. So see now, लक्ष्मण जी उनकी सेवा करना चाहते थे पूरी तरीके से, ठीक है। तो उस समय पे हम देखते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण जी को मनाया कि बोले देखिए ये जो है व्हील ऑफ, दिस इज द व्हील ऑफ प्रोविडेंस विच कैन नॉट बी checked, which cannot be changed even if we endeavor. This is not the fault of Mother Kaikeyi. You should not blame her, you should not develop malice towards her, because it is the will of providence. Nothing happens without the will of the Supreme Lord. So this is the will of destiny, this is the will of Supreme Lord, that I have to go for forest. So there may be some higher purpose behind this. So Lakshman, please don't convince me for changing my vow, and it is not possible to now like change my vow. So like that Ramji told to Lakshman ji. तो लक्ष्मण जी फिर उनको समझ गया कि अभी कितना भी कुछ भी करे राम जी नहीं माने, तो फिर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो कि मैं चलूंगा किसी भी हालत में, आप माने ना, मैं आने ही वाला हूं आपके साथ में। तो फिर लक्ष्मण राम जी बोले उनको क्या, अरे कि माता कौशल्या है और उनका सुमित्रा माता है, उनको कौन ख्याल रखेगा, मैं भी जाऊंगा तुम भी जाओगे तो उनका कोई ख्याल नहीं रखेगा, उनके उनकी सेवा कौन करेगा, तुम इधर ही रहो, तुम उनकी सेवा करो। बट वो बोले नहीं, भरत और शत्रुघ्न भी आपसे बहुत प्रेम करते, तो वो भी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा करेंगे, पर मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो फिर लक्ष्मण जी को अलाउ किया राम जी ने। तो लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा त्याग था, ठीक है। तो अभी देखिए एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी करने के लिए अपने पास 1 घंटे में एक्टिविटी वाइज सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा, आपको क्या करना है उसको चार्ट में टाइप करना है। सो कंपेयर बिहेवियर ऑफ लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण विथ मॉडर्न ब्रदर्स, व्हाट आर द डिफरेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम लक्ष्मण's बिहेवियर। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया रंती देव का। तो रंती देव जो थे, तो रंती देव ने क्या किया था, देखिए रंती देव, उन्होंने, हम देखते हैं कि रंती देव जो थे वो एक राजा थे। तो उनके पास उन्होंने कुछ 1 साल तक, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने, 1 साल तक या कुछ महीनों तक फास्टिंग किया था उन्होंने, ना पानी पिया था ना खाना खाया था। उसके बाद जब वो प्रसाद लेने जब बैठे तो उस टाइम पे जो जो लोग आए, बहुत सारे लोग आए उनको मांगने के लिए, तो उन्होंने जितने लोग आए उन सबको खाना दिया और उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आखिर वो बोले कि मैं पानी पी के फास्ट ब्रेक करूंगा, तो कोई तो आया वो पानी भी मांग लिया, तो पानी भी ले लिया। तो उन्होंने अपनी सारी जो चीजें हैं, इवन 1 साल भूखा रहने के बाद अगर आपको बोला जाए तो आप बोलेंगे पहले मैं थोड़ा खा लेता हूँ बाद में बचा कर तो देता हूँ तुम्हें, है ना। अगर उसको जगह उनकी जगह होते तो उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और तो वैसे लक्ष्मण जी जो थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो पत्नी है, अपनी उनकी पत्नी थी यंग वाइफ, ही हैज यंग वाइफ उर्मिला, उनको छोड़ा, उनका त्याग किया। अपनी माता जो उनको बहुत प्रेम करती थी सुमित्रा माता का त्याग किया। उसके बाद राजसी जो सुख थे राजमहल के, उन सब का त्याग किया। उनको इतने सारे पोस्ट पोजीशन वैल्यू था, वो सारी चीजें वो त्याग करके किधर जंगल में गए लक्ष्मण जी, जंगल में जाने का डिसाइड किया राम जी की सेवा करने के लिए, ठीक है। तो ये देखते कि लक्ष्मण जी का जो त्याग था वो बहुत महान था। तो ये आप चार्ट में टाइप कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन modern brothers and Ram and Lakshman ji, and what lessons we can learn from Lakshman ji, so that you can type in chat.
यस, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, लव फॉर ईच अदर, दे आर सो मच। तो कंपेयर करना है आपको मॉडर्न ब्रदर और राम जी और लक्ष्मण जी में क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू राइट। सो सी लक्ष्मण जी ने क्या क्या त्याग किए और उनका जो भक्ति था भगवान रामचंद्र के प्रति वो बहुत ज्यादा था। तो वो क्या बोले कि भगवान राम जी आप जहां भी चलेंगे मैं आपके साथ में, मैं आपके आगे रहूंगा और आपके लिए मेरी तलवार से क्या रास्ता बनाऊंगा आगे। और इसमें बहुत देखिए ये पास टाइम बहुत डिटेल में, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, बट अभी हमारे पास समय कम होने की वजह से हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है शॉर्टली, क्योंकि आगे भरत जी का भी बहुत ज्यादा है, वो भी हमें देखना है। तो देखिए कि वो बोले कि मैं क्या करूंगा, आपके आप पे जो भी खतरा आएगा, वट एवर डेंजर इज गोइंग टू कम टू यू, फर्स्ट इट हैज टू फेस मी एंड देन इट विल कम टू यू। तो आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स, आई विल सर्व यू, आई विल आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसिटीज वट एवर रिक्वायर्ड इन फॉरेस्ट, आई विल सर्व यू एंड मदर सीता। तो जो लक्ष्मण जी थे वो उनकी सेवा करने के लिए पूरे तत्पर थे, तो उन्होंने माता सीता और राम जी की सेवा करने के लिए वो 14 साल तक सोए भी नहीं। अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल बिना सोए, तो ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी मैन, ही इज अनंत शेष, ही इज लॉर्ड बलराम जी। ठीक है ना, बलराम जी से अलग नहीं, वो भी भगवान के पार्श, भगवान के हम देखते एक्सपांशन है, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड ऑल्सो। तो लक्ष्मण जी बस वो सेवा भाव में है, तो इसलिए लक्ष्मण जी कैन डू दैट फॉर 14 years he didn't slept also, he didn't slept also for protecting lord रामचंद्र एंड माता सीता। तो वो रात भर पहरा देते थे कि माता सीता को और उनको क्या हो सके, कुछ संकट ना आए उनके ऊपर। हम देखते हैं कि देखिए 10 मिनट में मीटिंग क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप फिर से सेम आईडी के साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 10 minutes, after 10 minutes you can join with same ID again। तो देखिए, तो 14 साल तक वो सोए भी नहीं, एक भी दिन नहीं, तो पूरा रात भर जगे। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सोते थे, नहीं, दिन भर उनकी सेवा करते थे, उनकी रक्षा करते, उनके लिए बहुत सारी चीजें वो सेवाएं करते थे, ठीक है लक्ष्मण जी। फिर उन्होंने 14 साल तक कुछ खाया भी नहीं, खुद कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो सारे जो फल वगैरह लाते थे वो सारे लक्ष्मण जी राम जी को ही देते थे लाके फल। और तो राम जी को लगता था उन्होंने खा लिया होगा, बट उन्होंने 14 साल तक खाया भी नहीं। और वो बोलते थे भैया और भाभी आप खा लीजिए पहले, बाद में मैं खाता हूँ। बट उन्होंने 14 साल तक खाया नहीं, सोचिए 14 साल तक वो भूखे रहे। हम इधर 14 दिन के 14 घंटे के लिए भूखे नहीं रह सकते, 14 साल तक वो भगवान की सेवा के लिए भूखे रहे। और इन स्पाइट ऑफ फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम सिंसियरली सर्विंग राम, इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, राम जी की सेवा का त्याग कभी नहीं किया, ठीक है। सबमिसिवली उन्होंने क्या किया, राम जी की सेवा की, उनके लिए सारे जो हट बनवाई, फ्रूट्स रूट सारी चीजें उन्होंने ही सप्लाई की, उन्होंने ही लाई राम जी और माता सीता के लिए। तो भगवान की सेवा करते समय अगर हम लोग, तो आपने मराठी में एक मूवी था कोई, तो उसमें एक गाना था देखिए, विठ विठ्ठल नामाची शाळा भरली, असं काहीतरी गाणं होतं बघा, मला आता आठवत नाही पूर्णतः, पण त्यामध्ये होतं की शाळा शिकताना तहान भूक हरली, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा शिकताना तहान भूक हरली। मतलब क्या कि भगवान की जब हम भक्ति करते, भक्ति में ही सेवा करते, तो उस टाइम पे हमारी भूख प्यास जो है वो भी क्या हो जाती है, उससे भी हम परे जाते हैं, अगर हम फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं भगवान की सेवा में और उनकी भक्ति में। तो इसका मतलब ये नहीं हमें खाना नहीं है, वी कैन टेक प्रसादम, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट इफ वी एक्सपीरियंस इन ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी, तो उस टाइम पे हम 24 घंटे पानी भी नहीं पीते और कुछ प्रसाद भी नहीं लेते। तो बट होल डे वी आर एंगेज इन सम और द अदर सर्विस ऑफ लॉर्ड, then we forget about eating and everything, we forget about drinking water। जैसे ही बट अगर सेवा थोड़ी बंद कर दी, अगर सोने वगैरह चले गए, तो फिर भूख लगती, प्यास भी लगती। बट जब तक भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में जुड़े, तब तक ना भूख लगती ना प्यास लगती। बट हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे ही थोड़ा सा भी अगर मन भटक गया, तो भूख लगने लग चालू हो जाती, प्यास लगने चालू होती। तो फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय सर्विंग लॉर्ड वी कैन राइज अबोव द हंगर एंड थर्स्ट ऑल्सो, बी फुल्ली एंगेज, फुल्ली गेट एब्जॉर्ब इन दैट, ठीक है। तो अभी ये इस हमने देखा कि लक्ष्मण जी के इससे क्या क्या लेसन हम सीख सकते हैं, वो आपको लिखने के लिए बोला है मैंने चार्ट में। तो अभी उसके बाद में हम देखते हैं कि
भरत मिसअंडरस्टूड। तो उस और एक लक्ष्मण जी से लेसन क्या सीख सकते हैं हम लोग, देखिए उन्होंने भगवान की सेवा के लिए खुद की सारे फैसिलिटीज का त्याग किया, खुद डिस्कम्फर्ट ले, ही एक्सेप्टेड डिस्कम्फर्ट फॉर वन सेल्फ एंड ही यूज ऑल हिज एनर्जीज फॉर कंफर्टिंग लॉर्ड एंड सर्विंग लॉर्ड एंड माता सीता। ठीक है, तो उन्होंने पूरा जो अपना शक्ति है भगवान की सेवा और भगवान को आनंद और उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में लगा दी, माता सीता की और उनकी सेवा करने में। ठीक है, तो ये उसमें बताया गया। तो लक्ष्मण जी से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। तो उन्होंने पूरा सारी चीजें सैक्रिफाइस की। ठीक है, तो जब हम देखते बचपन में भी लक्ष्मण जी जब व्यास हम देखते विश्वामित्र मुनि उनको लेके लेने के लिए आए थे, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे, तब भी उन्होंने राम जी की सेवा की। तो बचपन से ही उनको राम जी के प्रति बहुत भक्ति थी और उन्होंने क्या किया, भगवान की बचपन से ही सेवा की है। तो लक्ष्मण जी से हम भगवान की सेवा के बारे में सुन सकते हैं। अभी भरत महाराज के बारे में हम विल कम बैक टू भरत महाराज नाउ। सी, तो तो भरत महाराज को सब लोगों ने क्या किया, मिसअंडरस्टूड किया। भरत महाराज ही राजा बनना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने माता को बोला ऐसा वचन मांगने के लिए। इसलिए राम जी को जंगल में जाना पड़ा भरत महाराज की वजह से, और इसलिए दशरथ महाराज का मृत्यु हो गया भरत महाराज की वजह से। तो सब लोग सारा ब्लेम भरत महाराज के ऊपर आया, क्योंकि कई राजा किनको बनाना चाहती थी, भरत महाराज। शी वांट टू make Bharat Maharaj as king, but he himself, he never wanted to be king. He just wanted to be servant of Lord Ram. तो वी कैन सी दैट। तो कौशल्या, माता कौशल्या ने भी मिसअंडरस्टूड किया, बोले भरत तो इतना प्रेम करता था राम जी से, अभी वो राजा बनना चाहता है, मेरे राम को जंगल में बेच के राजा बनना चाहता है, तो उससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इवन इफ भरत वांटेड टू बिकम किंग, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट भरत वाज मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वो राम जी को जंगल भेजना चाहते थे 14 साल तक। तो राम जी के बिना कैसे रहेंगे सब लोग? पीपल ऑफ अयोध्या कुड नॉट इमेजिन living without Lord Ramchandra, what to speak of his mother and other family members. ठीक है, तो फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि also misunderstood भरत महाराज। गुहा, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, तो जब ही also misunderstood भरत महाराज। कैसे, हम आगे देखेंगे। भरद्वाज मुनि also misunderstood भरत महाराज। लक्ष्मण, इवन लक्ष्मण जी also misunderstood भरत महाराज। that will come ahead, we'll see that. तो इंटीग्रिटी इज द टेस्ट ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। पर्सन्स कैरेक्टर का, अगर किसी के कैरेक्टर के हमें टेस्ट लेने, तो इंटीग्रिटी इज द टेस्ट ऑफ द पर्सन्स कैरेक्टर। एंड इफ यू वांट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। अगर किसी को पावर देने के बाद हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही ट्रीट्स अदर्स, व्हाट इज हिज बिहेवियर, दैट शोज वेदर ही हैज गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर। जैसे सुग्रीव जो थे, देखिए सुग्रीव वो भी महान भक्त है भगवान के, बट हमें लेसन सिखाने के लिए वो बताते हैं कि सुग्रीव जी जो थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको राजा बना दिया गया तो क्या हो गए, भोग विलास में लग गए पूरी तरीके से, और राम जी को जो वचन दिया तो भूल गए थे। तो वैसे ही तो, बट अगर लक्ष्मण जो भरत महाराज थे, उनको अभी उनको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वैसे एनीवेज बोलेंगे अभी मेरी क्या गलती है, मैं तो था ही नहीं इधर, मुझे तो पता भी नहीं, अभी अभी कोई नहीं। वैसे दशरथ महाराज का भी उनका मृत्यु हो गया, अभी वो भी नहीं है, राम जी भी गए, तो अभी राज्य का क्या होगा, तो मैं क्या, राम जी ने भी बोला है कि आप बनो, तो ठीक है, उनकी इच्छा के खातिर मैं बन जाता हूँ, ऐसा नहीं। तो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड भरत महाराज व्हाट ही डिड, वी कैन अंडरस्टैंड इन फ्यूचर स्लाइड्स। तो देखिए, लिविंग एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कैन लीड टू पावरफुल कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो भरत महाराज को जब ये पता चला, तो ही बिकम सो एंग्री विथ हिज मदर। बोले, यू आर नॉट माई मदर, यू आर माई वर्स्ट एनिमी। हाउ कैन यू इमेजिन दैट आई कैन live without Lord Ramchandra, and how you can imagine that I can desire to become king instead of Lord Ramchandra? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा ख्याल भी मेरे मन में कभी आएगा नहीं। बोले, तो तुम मेरी माता नहीं हो, तुम बोले मेरी शत्रु हो सबसे बड़ी। तो उन्होंने उनको गुस्से में बोला और वो चले गए। बोले, तुमने मेरे पिताजी का भी वध किया, मेरे ऊपर भी इतना बड़ा इल्जाम तुम्हारी वजह से लग गया, और मेरे राम जी भी मेरे से दूर हो गए। ठीक है, मेरे राम जी भी मेरे से दूर हो गए। तो ही बिकेम सो मच एंग्री एंड अपसेट विथ वी कैन से कैकेयी, माता कैकेयी। ठीक है, तो और इससे फिर सब पूरा हेवाक हो गया, सब जगह पे दुख का माहौल छा गया, सब लोग दुख में डूब गए। कोई उधर
पूरे उसके बाद राजमहल में जो पैलेस था उधर भी सब लोग दुख में डूब गए, सब जगह पे दुख ही दुख फैल गया। तो भगवान का जैसे ही हम एसोसिएशन का त्याग कर देते हैं, भगवान को जब छोड़ देते हैं, तो देखिए दुख ही दुख आ जाते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए कनेक्शन विथ लॉर्ड can give us happiness even amidst so many problems. Even we have so many unlimited problems, still connection with Lord and engagement in His service can give us great happiness. But even though we might have so many facilities and all luxuries, but if you don't have connection with Lord and if you are not engaged in the devotional service of the Lord, it can produce greatest miseries to us. That is the lesson we can learn from this. So see, now we can go ahead. So see next slide what is told. लक्ष्मणा डाउट्स भरत। तो जैसे ही भरत महाराज वो सुनते हैं तो क्या होते, तुरंत क्या करते, पूरे अपनी वो निकल पड़ते तुरंत कि मैं राम जी को वापस लेके आऊंगा, उनको राजा बनाऊंगा, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है और मैं बिना राम जी के रह नहीं सकता, तो मैं उनको लेने जंगल में जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे सारे मिनिस्टर्स सब बोलते, वशिष्ठ मुनि बोलते हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, सारी बहुत सारी प्रजा भी बोलते हम भी आएंगे, और सारे फैमिली मेंबर्स, और फिर माता कौशल्या सुमित्रा वो भी बोलते, फिर माता कहीं कहीं को भी उनकी गलती समझ जाती, वो भी जाते, शत्रुघ्न और सारी सेना के साथ वो क्या करते हैं, जंगल में जाते ढूंढते हुए किनको, भरत महाराज लक्ष्मण राम जी को ढूंढते हुए जाते। तो उधर उनको भरद्वाज मुनि मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, भरद्वाज मुनि also misunderstood भरत, that he thinks whether भरत महाराज is going to attack राम और what, ठीक है ना, इतनी सेना लेके जा रहे हो, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग करती हूँ, इतनी सेना के साथ जा रहे, अगर उनको मिलने जाना होता तो अकेले जाते थे, बट सेना के साथ क्यों जाते, क्योंकि वो किंग को लेने जा रहे हैं ना, तो बिकॉज ही कंसिडर लॉर्ड रामचंद्र टू बी किंग, सो किंग को वैसे किंगली मैनर में लेके आना चाहिए ऐसा। तो अभी 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा, तो बेटर आई विल एंड दिस मीटिंग एंड देन विल स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। सो प्लीज